साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। In the last 24 hours, 47,703 cases have been reported and 654 deaths have been reported. If you look at the total COVID numbers, it's gone past 14,83,000. According to Bloomberg's coronavirus tracker, India's coronavirus epidemic is now growing at the fastest rate in the world. The number of cases increased by 20% over the last week. नमस्कार साथियों, आज देश में कोविड के कुल मामले 15 लाख को पार कर चुके हैं। 15 लाख हमारे खातों में तो अभी तक नहीं आए, परंतु अप्रैल से लेकर अब तक 80 लाख नौकरी पेशा लोगों ने अपने पीएफ के खातों से 30,000 करोड़ रुपए जरूर निकाल लिए। क्या सरकार ऐसी ही आत्मनिर्भरता हमें देना चाहती है कि इस आपदा के समय भी देशवासी अपना इलाज अपने संसाधनों से कराए? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? कोविड के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को सीधी मदद करने की बजाय सरकार ने उन्हें उनके ही भविष्य की सुरक्षा से समझौता करने का उपाय सुझा दिया। आज नौकरी पेशा लोगों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो चुका है। वर्तमान संकट में है क्योंकि नौकरी जा रही है, और अब भविष्य भी संकट में हो गया क्योंकि पीएफ का पैसा उन्होंने खपा दिया। मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत प्रभाव से नौकरी पेशा और मध्यम आय वर्गीय लोगों के लिए पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम का ऐलान करें, जिससे इस तरह के हालात भविष्य में उत्पन्न ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। And that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. PM Modi-led BJP government has failed in all sectors, and it has nothing to do with the global pandemic, but simply poor governance. Demonetization killed the overall economy. Faulty GST wounded businesses. Chinese intrusion hurt the nation's sentiments, and the gross mismanagement of COVID-19 led to a humanitarian, health and economic crisis all at once. India during 2005 to 2015 lifted 270 million people out of poverty, but since March 2020, more than 400 million people face the risk of falling back into poverty. Unemployment rate during 2005 to 2015 was 2 to 4.9%, which during PM Modi's tenure has risen to 11% in June 2020. Average GDP during UPA regime was between 7.75% to 8.9%, whereas GDP projected for the entire FY21 is minus 3.1% to minus 7.3%. Since PM Modi came to power, petrol and diesel prices have increased by 13% and 48% respectively. It is for the first time in India's history that diesel is more expensive than petrol. Prices of essential commodities have increased between 20% to 167% in the last 6 years. Modi even failed to protect the country from coronavirus and China. And even the world's largest democracy is not safe under the Modi regime, where national institutions are made to function like puppets. Modi-led BJP has made a mockery of the electoral process. The fact is that in every sector and every aspect of governance, PM Modi has failed. Today, our nation stands in a very dangerous position because the BJP fails to address the biggest problem. Political power does not translate to good governance. प्रत्येक 1 मिलियन या प्रत्येक 10 लाख आबादी में से कितने टेस्ट हो रहे हैं? इसमें से देखा जाए तो सबसे ऊपर जो लिस्ट में देश है वो है यूएई। यूएई में प्रति 10 लाख 4,41,000 लोगों के टेस्ट हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे व्यक्ति का उन्होंने टेस्ट कर लिया। अमेरिका जैसे देश में भी प्रत्येक 10 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोगों का जो है टेस्ट हुआ, मतलब हर 10वें आदमी का वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएई में आज ये हाल हो गया कि हर दूसरे आदमी को उन्होंने टेस्ट करके ये चीज़ जो है इस्टेब्लिश कर दी
कितने लोग हैं वहाँ 50-60 हज़ार 50 हज़ार के आसपास केस आया और ऑलमोस्ट 300 डेथ्स हुई, बाकी लोग रिकवर हो गए। आज वहाँ पे माहौल ये है कि यूएई में जो है कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा है, वहाँ पे हर चीज़ जो टूरिज़्म तक खुल गया है वहाँ पे, और थिएटर्स खुल गए हैं, सब चीज़ खुल गया है। यहाँ तक कि हमारे देश में, भारत में जो आईपीएल इस साल नहीं हुआ, तो हमारे बीसीसीआई जो बोर्ड है वो आईपीएल इस बार यूएई में कराने का पूरा प्लानिंग कर चुका है और अब उस चीज़ को जो है करने में लगा है प्लानिंग के बाद। भारत में कितने टेस्ट हो रहे हैं प्रति 10 मिलियन? बहुत शर्म की बात है कि भारत में प्रति 10 मिलियन प्रति 10 लैक्स भारत में सिर्फ 9,000 टेस्ट हो रहे हैं, 9 या 10,000 टेस्ट। मतलब 130 करोड़ की आबादी में से इतने कम टेस्ट हो रहे हैं, तो पता नहीं कैसे जो है कितना समय लगेगा पूरे देश की आबादी का टेस्ट करने में। सरकार जो है इसमें पूरी विफल रही है। शायद इसी वजह से आज जो है प्रत्येक दिन 50,000 केस रोज आ रहे हैं देश में, 15 लाख नए केसेस आ चुके हैं और इसका कोई ठीक नहीं, क्योंकि लोगों को ना इलाज ढंग से मिल रहा है, ना टेस्ट हो पा रहे हैं, ना बेड्स अवेलेबल हैं। जिनको बेड्स मिल भी रहे हैं हॉस्पिटलों में बहुत बुरी हालत है, मिसमैनेजमेंट पूरा है। लोग जगह जगह से हर राज्य में जो है वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि किस तरीके से उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और सरकार किस तरीके से उनको हेल्पलेस बना के छोड़ रही है। आज ये आईपीएल का एग्जाम्पल दिख रहा है, क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा इवेंट है वो हम यूएई में लेके जा रहे हैं। यूएई एक ऐसा एग्जाम्पल बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे उन्होंने कोरोना